Good morning, everyone. So today we all are here to discuss class 12 chemistry. And our chapter is D block elements. That means in previous class we all are here to learn about many type of versatile nature and versatile properties of D block elements. Here D block elements, that means we all are talking about the transition elements, where transition elements are those elements that mean generally whereas two subcells are incomplete. That means two subcells are incomplete, whereas D block element is known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. दैट मीन कि जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस में हमेशा क्या होता था कि दो एलिमेंट्स क्या होते थे, किसी भी एलिमेंट्स के दो सबसेल्स अनपेयर्ड वे में कंप्लीटेड रहते थे, और वो अनपेयर्ड जो भी हमारा सबसेल्स होता था वो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटेगरीज में क्या करता था, डिवाइड करता था. तो ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा. एंड ऑल्सो मेनी टाइप ऑफ वर्साटाइल नेचर भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, जैसे कि उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी कलर प्रॉपर्टीज क्या होती है. दैट मीन कि अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन स्टेट, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, यदि उनका ओए नंबर वेरी करता है, तो ठीक उन्हीं के बेसिस पे क्या होता है कि उनका ओए नंबर के साथ साथ एज वेल एज ओए नंबर के साथ साथ उनकी कलर प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे चेंज हो जाती है. And we all are discussing about the atomic radius and many type of ionic radius. It's at heat of atomization, that means also known as atomization enthalpies. The topic is also atomization enthalpy. This is also called as heat of atomization. Then what do you mean by heat of atomization? This is very simple things in that we all are studying previous class and also taught you. That means कि there is any substance having one mole of lattice structure. When you have to give some heat and they want to become a free electrons, that is called heat of atomization of those individual element. That means कि यदि आप किसी भी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस को, यदि कोई भी ऐसा हमारा एलिमेंट है जिसके क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स कंबाइन हैं, और उन कंबाइंड एटम को आप यदि हीट देकर क्या करते हो, यदि आप हीट देकर उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में डिवाइड करते हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एक्वायर हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन. दैट इज कॉल्ड व्हाट? हीट ऑफ एटोमाइजेशन. So heat of atomization in terms as we know that the most सबसे ज्यादा यानी कि most heat of atomization and least heat of atomization, that means zinc. This is zinc. Zinc has 126 kilojoule per mole. Least heat of atomization is this. This is least heat of atomization. And when you talk about the most heat of atomization, that means the highest heat of atomization, the term is vanadium. Vanadium. This is also an element of D block. This is also an element of D block, having 550 kilojoule per mole heat of atomization. That means this is an inorganic chemistry. You have to learn everything about that. That means the catalytic property, that is the heat of atomization. Many type of individual properties you have to learn individually for the every elements. So you have to learn this. This is in the star. This is also a star buckets here. और इस टाइप से क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन किनका होता है और सबसे लिस्ट हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है. बट दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 2. सो टर्म 2 की एग्जामिनेशन जो है हमारे एज पर सीबीएसई रूल
क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होने वाला था, जैसे टर्म 1 में अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पेपर दिया है, अभी सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो काउस बच्चा ये हो सकता है हमारा कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन जिंक हैज अ लीस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन, व्हाट इज द रीजन ऑफ जिंक हैज अ लीस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या रीजन ऐसा है कि जिंक का हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम है। तो एज वी नो दैट द डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैविंग द डी ब्लॉक सबसेट, दैट मीन डी सबसेट्स आर इनकम्प्लीट। D blocks elements are those elements whose D subsets are incomplete, but in the category of zinc, in the category of zinc, reason. Now we have to discuss about the reason. तो first reason हमारा क्या है? तो first reason बच्चा हमारा है कि it has complete D subsets. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या है कि इट हैज अ कंप्लीट डी सबसेट्स एंड ऑल्सो इट हैव लेस इंटर एटॉमिक force of attraction between their particles. तो दिस इज द रीजन कि जिंक की हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, काफी लो होती है, काफी कम होती है। तो ये हमारा क्या था, कंट्रीब्यूटिव सब्सटेंस है। वैलेडियम के टर्म्स में इनका इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very high. So this is the reason vanadium have a highest heat of atomization and zinc have a lowest heat of atomization. Now we have to consider the most important thing. That means directly I want to say that if there is a less energy having to acquire any substance, if there is a less energy having to acquire their substance, you have to put less heat to get breakdown it. If you arrange a lot of energy to make any substance, you gain and you have to and you require to get more energy to break down it. So this is the suitable reason and this is the suitable example for this and this is suitable reason for every questions of. Now यदि ये क्वेश्चंस कई बार हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन के टर्म्स में, जिसको आप हीट ऑफ एंथैल्पी कहते हो, तो इनके कंसीडरेशन में एक क्वेश्चन आता है. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Completed? Now I am erasing. Wait. Okay. The another properties we have to discuss that there is some important compound. There is some important compound that mean having to form from the D blocks element. We have to study about it. Before this, we have to also study about the OA number. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था OA नंबर के फॉर्मेशंस और जितने भी वर्सटाइल नेचर्स है, तो उन सारे नेचर्स को, प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे. दैट मीन यदि ये लर्न हो जाएगा, उसके बाद आप इंडिविजुअली इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, इलस्ट्रेट कर आप एक बार नोट्स अपना प्रिपेयर करेंगे और नोट्स के बेसिस पे आप ओवरऑल क्लियर आउट करेंगे. और इन क्लास के नोट्स जो है वो हम लोगों ग्रुप में आपको प्रोवाइड करेंगे लिंक के साथ. अनदर प्रॉपर्टी दैट मीन आवर हेडिंग इज, आवर टॉपिक इज सम important compound. In this topic, we all are here to learn about some important compound
having formed by the D blocks element. This is so important, and their preparations, their properties, their uses. तो ओवरऑल हर चीज की यूजेस जो होती है उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइंड होती है, और प्रॉपर्टीज को भी लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ओवरऑल जो भी कंपाउंड्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उन सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन किस वे में आप कंप्लीट कर रहे हो, तो इन सब चीजों को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल बाय सिंगल कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो डी ब्लॉक्स के टर्म में बनते हैं, उनके प्रिपरेशन के मेथड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एटलीस्ट उनके यूजेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट। This is not a very new things here. Potassium dichromate, very individual and very easy compound, और ये कंपाउंड्स हम लोग काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। बैक इन क्लास 8, 9, 10 से हम लोग ये कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस आउट करते आ रहे हैं। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दिस इज क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, that means this is the concentration of chromate ion, and you have to put this. What is this? This is potassium. This is potassium. Potassium plus chromate ion having to combine all the charges, all the negatively charges, having two negative charges are applied on chromate ions, which is consecutively normalized by potassium having single charge, but you have to take two potassium in this, and you have to form this potassium dichromate. That means this is unsuitable also, as well as suitable plus completely stable compound is the sodium dichromate. Now we have to discuss about the preparation. How can you prepare the sodium dichromate? Can you prepare this easily from the direct solution? Can you prepare from the direct substitution? तो अभी क्या है, डायरेक्टली हम लोग समझते हैं एकदम कॉन्फ़िगरेशन टाइप में कि यदि आप फॉर्मेशंस करते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो क्या आप डायरेक्टली क्रोमेट आयन को पोटेशियम के साथ कंबाइन करके आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, या फिर आप कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे, तब जाकर कोई कंपाउंड ऐड होगा, उस कंपाउंड के फॉर्मेशन से हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। तो बच्चे इसी को हम लोग प्रिपरेशन मेथड कहते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस। देखने से तो इजीली हम लोग को ऐसा लग रहा है कि पोटेशियम हम लोगों ने दो पोटेशियम लिया हैविंग टू पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एक क्रोमेट आयन हम लोगों ने ले लिया है, तो क्या ये क्रोमेट आयन और पोटेशियम डायरेक्टली कंबाइन होकर फॉर्मेशन कर देगा? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सो इजी, मतलब ये देखने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं बनता। You have to put essential things on this. That means generally this potassium dichromate ion is prepared with the help of many type of chromatore, ferrochrome and also chrome ion. तो दैट मीन ये सब आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर हमारा क्या बनता है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, जिसके पीछे एंड उनके बेसिक्स के रिगार्डिंग हम लोग काफी सारे कंपाउंड्स को अटैच करेंगे। एक पाउडर्ड वे में क्रोमाइटोर को हम लोग कंटेन करते हैं, फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और तब जाकर हमारा प्रिपेयर होता है सोडियम डाइक्रोमेट। फिर इस सोडियम क्रोमेट को अगेन हम लोग फॉर्मेट करते हैं, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, अगेन उस सोडियम डाइक्रोमेट को कंबाइन करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, एंड वी हैव गेट दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट मीन देयर इज अ 3 स्टेप्स, you have to use 3 steps for the formation, for the preparation of potassium dichromate. Now we have to consideration the other properties like this. We have to erase it. Just wait for this.
So again I am writing here our important compound is potassium dichromate. This is E2Cr2O7. We have to learn about the preparation methods of sodium dichromate. That means generally it is prepared. It is prepared from chromate ion and again ferrochrome is here. That means ferrochrome and chromate ion, that